Okay, so in the last class, I have discussed some questions from the previous years about from economic geology part. So I think at first I should give you some knowledge about the mains exam, about the overall syllabus. I should have done in the last class. And okay, today I will discuss about the. I'll try to discuss about the syllabus and how to uh, approach the questions overall. Then again from the next class, I will specifically discuss the questions, question answers. But today I will discuss the syllabus and the blue book list and the resources. Okay, so I think you all know about the mains exam. There are three papers: paper one, paper two, and paper three for geologist. And for hydrogeologist, instead of paper three, there is hydrogeology paper. And each paper contains 5 topics. And from each paper has 200 marks, and 200 marks, there are two sections. The first one is compulsory. If you have gone through the question from the previous years, you can see that first one is compulsory, and this is basically the short type. uh, 10 short notes comes from 5 different sections. From each topic, two short notes come, and then the broader answer type questions, and from each topic one question comes, and one question is like 15 15, and then 10 10 10. You have to answer just one. I think you all know about this one. Today I will discuss about the syllabus. The first for the paper one, uh, I think you all know there are 5 topics. The first one is general geology and remote sensing. Second one is stratigraphy. Third one is structural geology. Fourth one is paleontology, and the fifth one is sedimentology. And for the second paper, there is another 5 topic. First one is both the physical and optical mineralogy part and crystallography part. Second one is the geochemistry part. Third one is the igneous petrology. Fourth one is metamorphic petrology, and the last one is geodynamics. And for paper three, there are another 5 topics: economic geology part, then the exploration geology part, fuel and coal geology, and some environmental geology part, and some specific deposit of specific Indian deposit part, and some mineral laws. Okay, so I think you, is it visible? Okay, so start from the first paper. You can see that in the physical geology part, the basic ones, the okay. So in the physical geology part, you can see that there are evolution of art. Okay, then I think you all know about this one: evolution of art, art's internal structure, earthquake, volcanoes, isostasy, weathering processes, and landforms, basically the geomorphological part, and some features of ocean floor like continental shelf, slope, rise, etc. So in for this topic, मैंने क्या किया था कि okay, for geomorphology part, you can consider Huggett books. Okay, I think name was John D. Huggett something, geomorphology के लिए. और आपको क्या करना है, ये जो river, wind, glacier, waves, ground water, ये सब है, इसका erosional और depositional feature ये कई बार आ चुकी है. हाँ, ये तो पूछते हैं कि wind की erosional feature, 15 मार्क्स के, विंड के डिपोजिशनल फीचर, और
वेव, ग्राउंड वाटर, ये सब की इरोशनल और डिपोजिशनल फीचर्स के बारे में पूछते हैं, आपको क्या करना चाहिए कि रेलिवेंट फीचर्स डालना है, और जो फीचर्स आप डाल रहे हो उसके बारे में आपको 2-3 लाइंस लिखना है और कंप्लीट करना है। कि सपोज फॉर वेव एओलियन, मतलब विंड के जो डिपोजिशनल फीचर्स है, डिपोजिशन फीचर्स मतलब ड्यून है, बरखंड ड्यून, parabolic dune, you can draw the figures and then just write down 2 to 3 parts की बरखंड ड्यून जो है उसका हॉर्न पार्ट टूवर्ड्स द विंड डायरेक्शन है, यू कैन ड्रॉ द फीचर, एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ बारखंड ड्यून इज पैराबोलिक ड्यून, यू कैन ड्रॉ द फीचर लिनियर ड्यून, स्टार ड्यून। ओके, ऐसी तरह से आपको करना है। और वो जो अदर्स पार्ट है फॉर जनरल जियोलॉजी पार्ट की इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके लिए मैंने जनरल जियोलॉजी का जो बुक है, एडीजी का बुक है, जीबी महापात्रों का बुक है, वो मैंने कंसल्ट किया था। और जो ओशन फ्लोर के जो फीचर्स है, ओशन फ्लोर, कॉन्टिनेंटल सेल्फ स्लोप, राइजेस, इसके लिए मैंने जो ओशनोग्राफी का एक बुक था उसकी चैप्टर 2 में ये सारी चीज बहुत अच्छी तरह से कवर किया गया है, तो मैंने वो पढ़ा था। और उसके बाद ये जो कोस्टल, पेनिनसुलर और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर है, ये सब भी जियोमॉर्फोलॉजी का जो बुक है उसमें कवर किया है कि क्या क्या जियोमॉर्फिक फीचर्स है कोस्टल, पेनिनसुलर, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर में। व्हाट यू शुड डू, ईच एंड एवरी टॉपिक को लेकर आप ना 2-3 पेजेस का एक नोट्स प्रिपेयर कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कुछ पूछा गया उस टॉपिक से, तो आप क्या कर सकते कि आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन पता ना भी हो, आप कुछ लिख सकते हैं कि ठीक है, ये जो पूछा गया है वो मुझे एक्चुअली नहीं पता है, पर इसके बारे में तो मुझे ये पता है। तो आप शायद हो सकता है कि आप उसके बारे में 2-3 पेजेस का कोई नोट्स प्रिपेयर किया था, तो आप लिख सकते हैं। आपको कुछ ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा है तो ठीक है चलो छोड़ देते हैं, 10 मार्क्स 15 मार्क्स कंप्लीटली छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको आपने जो पढ़ा है, जो आपने नोट्स प्रिपेयर किया है, अगर उससे आपको कुछ भी लगेगा कि ये ठीक है, ये मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर, तो आपको लिखना है। आपको ना पूरी क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया तो उसमें से कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा, बट अगर आपने अटेम्प्ट किया तो उससे आपको जो भी हो सका तो उससे आपको 2-3 मार्क्स जरूर मिलेगा। तो इसीलिए आपको नोट्स प्रिपेयर करना है ईच एंड एवरी टॉपिक को लेकर। कि इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, तो ठीक है, एक 1 पेज की एक नोट्स मैंने प्रिपेयर किया कि कैसे नेबुलर हाइपोथेसिस इवॉल्व हुआ था, कैसे कांट और लैपलास ने थ्योरी इम्प्लेस किया था एक डायग्राम को देकर। ऐसी तरह से अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इंटरनली कोर, मेंटल क्रास्ट कैसे होते हैं, उसका जो लेयर्स है, डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट जो डिसकंटिन्यूटी है उसको लेकर, कौन सी जगह पर क्या क्या कंपोजिशन है, ये सब को लेकर आपको एक 2-3 पेजेस का एक नोट्स प्रिपेयर करना है कि किसी भी चीज आएगा तो यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। ओके, सो ऐसी तरह से आपको करना है। और रिमोट सेंसिंग के बारे में जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैंड्स जो है कि स्पेसिफिक जो बैंड है, एक्सरे, गामा रे, नियर इंफ्रारेड, विजिबल, इसका जो स्पेक्ट्रम है, और उसके बाद कौन सी स्पेक्ट्रम में कौन सी कलर हमें दिखता है। कि शायद लगता है हमें पता है कि वाटर, वी कैन सी द ब्लू कलर ऑफ वाटर। ओके, सो क्या होते कि जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो रिफ्लेक्ट करते हैं और जो लॉन्ग वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करते हैं वाटर। वेजिटेशन के लिए हमें ग्रीन दिखता है और नियर इंफ्रारेड में रेड दिखता है। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, एक डायग्राम को लेकर, रिफ्लेक्टर्स के एक डायग्राम को लेकर, आई थिंक यू विल गेट दिस डायग्राम इन द बुक इज आरपी गुप्ता, आई थिंक आरपी गुप्ता एंड विली का एक बुक है। ये दोनों बुक मैंने कंसल्ट किया था फॉर रिमोट सेंसिंग पार्ट। ये दोनों बुक में आपको मिलेगा ये सारी चीज। तो डायग्राम को लेकर आपको एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। ओके, तो यहाँ पर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग है, वेरियस पार्ट्स है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की, लैंडसेट, IRA स्पॉट, ये भी अलग अलग चैप्टर है। आरपी गुप्ता में अलग अलग चैप्टर है लैंडसेट, IRA स्पॉट के लिए। तो आपको क्या करना है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज लिखा हुआ है, तो आपको जस्ट पॉइंट नोट डाउन करना है वहां से कि 5 और 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड उसके बाद उसका यूज कौन सी जगह में लैंडसेट यूज किया करते हैं, कौन सी जगह में IRS करते हैं, कौन सी जगह में स्पॉट करते हैं, इसको आपको लेकर एक 2-3 पेजेस का नोट प्रिपेयर करना है। ऐसी तरह से ना हर एक टॉपिक को लेकर, जैसे लास्ट ईयर पैरालक्स को लेकर एक 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट्स आई थी,
तो अगर आपने पैरालक्स के बारे में कुछ करना नहीं है कि पैरालक्स, व्हाट इज पैरालक्स, यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन, देन डिफरेंट टाइप ऑफ पैरालक्स देयर आर, एंड देन यू कैन ड्रॉ द फिगर कि पैरालक्स क्या होती है। तो ये करने से ही आपको, तो एक पेज है ना 5 मार्क्स के लिए, तो ये तो फुल हो जाएगा और डेफिनेटली विल गेट 4 और 4.5 मार्क्स। तो इसी तरह से हर एक टॉपिक को लेकर आपको एक शॉर्ट नोट्स, 1 पेज 2 पेज का एक नोट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का जो है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का आई थिंक यू नो ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल जियोलॉजी बुक्स। बहुत सारे बुक्स है, एसकेजी का बुक्स है, एम्पेबलिंग्स का बुक्स है, हैकनफॉसन है, ट्विसन मूर है। तो जो भी आपको लगेगा कि ठीक है ये बुक पढ़ के मुझे समझना, मैं जल्दी समझ सकती हूँ इस बुक से, तो यू कैन गो फॉर दैट। कि ऐसा नहीं कि हाँ ये बुक बोला तो मतलब ये बुक ही पढ़ना है और कोई बुक नहीं है उसका, अगर उसका लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा है तब भी आप पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। जिस जो बुक से आपको लगेगा कि ठीक है इसका लैंग्वेज हमें समझ में आ रहे है, ये लैंग्वेज एक लेमैन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ठीक है आप उसे बुक को पढ़ सकते हैं। फिर स्ट्रक्चरल के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल के बारे में अगर आप 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट्स भी लिखेंगे तो डायग्राम जरूर डालना, डायग्राम डालना बहुत जरूरी है फॉर स्ट्रक्चरल। एंड ये जो पार्ट्स है ना कि स्ट्रक्चरल, यहाँ पर लिखा हुआ कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ फोल्ड, क्लीवेज, बुडिन, जस्ट एक एक वर्ड लिखा हुआ है, बट फोल्ड मतलब द सारा चीज, एंटायर थिंग रिलेटेड अबाउट फोल्ड, मतलब फोल्ड का क्लासिफिकेशन, हर एक क्लासिफिकेशन, मतलब कि कार्वेचर को लेकर क्लासिफिकेशन, फोल्ड एक्सिस को लेकर जो क्लासिफिकेशन, इंक्लाइन एंगल को लेकर जो क्लासिफिकेशन है, एक्सियल प्लेन को लेकर जो क्लासिफिकेशन है, सब क्लासिफिकेशन, एंड देन सुपरपोज डिफॉर्मेशन, रैमसेस क्लासिफिकेशन, सब चीज रिलेटेड टू फोल्ड, तो सब कुछ आपको कवर करना है। क्लीवेज को लेकर भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्लीवेज लिखा हुआ है, पर इफ यू हैव गॉन थ्रू यू कैन सी दैट आई थिंक 2017 और 18 में आया था क्रेनुलेशन क्लीवेज, 5 मार्क्स की एक शॉर्ट नोट। तो आपको एंटायर थिंग कवर करना है, क्लीवेज मतलब हर एक चीज को आपको कवर करना है, क्लीवेज, ग्रेनुलेशन क्लीवेज, डिसजंक्टिव क्लीवेज, ओके, एक्सियल प्लेन क्लीवेज, ये सब 5 मार्क्स के लिए आ ही सकते हैं। देन बुडिन, बुडिन क्लासिफिकेशन, बुडिन हमें तो सिर्फ यही पता है कि ठीक है बुडिन चलो क्या होते हैं कि एक लेयर सैंडविच बिटवीन 2 डक्टाइल लेयर, सो वो स्ट्रेच्ड हुआ एंड उसके बाद उसका बुडिनस हुआ, उसके बाद रेक्टेंगल शेप में वो ब्रेक हो गया, ऐसा है। बट बुडिन की तरफ से ही कभी आया था आई थिंक फोलिएशन बुडिनस के बारे में, राइट शॉर्ट नोट्स, एंड देन देयर आर वन थिंग आई थिंक क्लासिफिकेशन ऑफ बुडिन, तो ये सब भी आ सकते हैं। लिनिएशन की लिनिएशन के बारे में कि 2D और 3D में जो लिनिएशन है कि वो सब के बारे में पूछ सकते हैं। जॉइंट के क्लासिफिकेशन एंड फॉल्ट के लिए अगर आपने देखा है तो देख सकते हैं कि एक साल बाद एक साल फॉल्ट के जो 3 डोमेन है कि एक्सटेंशनल, देन कॉन्ट्रैक्शनल एंड देन स्ट्राइक स्लिप, उसके बारे में कभी कभी पूछ गया है। प्रीवियस ईयर्स भी पूछा था कि डुप्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में पूछा था, कभी ट्रांसप्रेशन एंड ट्रांसटेंशन डोमेन के बारे में पूछा था कि palm tree structure and tulip structure, flower structure, तो उसके बारे में आपको डायग्राम डालना है, कौन सी की लेफ्ट लैटरल राइट स्टेपिंग, राइट लैटरल लेफ्ट स्टेपिंग ऐसे हो रहा है, डायग्राम डालना है। उसके बाद palm tree and tulip structure को ड्रॉ करके आपको समझाना है। तो ऐसी तरह से आपको एंटायर स्ट्रक्चरल थिंग में डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डायग्राम डालना ही है। जो भी आप लिख रहे हैं, अगर आपने डायग्राम डाल रहे हो ना, तो इसका मतलब है आप 2-3 मार्क्स, यू विल गेट 2-3 मार्क्स मोर कि आपने डायग्राम डाला है, पर डायग्राम नहीं डाला है तो वो रेलिवेंट नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम डालना ही है। उसके बाद सेडिमेंटोलॉजी में मैंने सैम बॉग्स और गैरी निकल्स, ये दोनों बुक कंसल्ट किया था। आई थिंक ऑल ऑफ द टॉपिक्स आर कवर्ड। दिस 2 बुक्स, अगर आपने सोचा कि ठीक है 2 बुक्स नहीं तो एक बुक, वो भी सही है। कुछ आई थिंक
सैंडबॉक्स में भी सब कुछ कवर है, सब टॉपिक भी कवर है। और यहाँ पर भी सेडिमेंटोलॉजी पर भी जो स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगर कुछ पूछा गया प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में, आपको डायग्राम डालना ही है। ये बहुत जरूरी है कि आपने डायग्राम डाला और उसके बाद अपने उस डायग्राम के लिए 2-3 लाइंस लिखा एंड देन फॉलोइंग द अदर डायग्राम्स। ओके, तो अगर कुछ स्ट्रक्चर, पेनी कॉन्टेम्पोरेनियस स्ट्रक्चर और प्राइमरी स्ट्रक्चर, बायोजेनिक स्ट्रक्चर, तो आपको जरूर डायग्राम डालना है। डायग्राम डालना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी के लिए भी आपको डायग्राम डालना है कि ट्रांसग्रेशन, प्रोग्रेशन, रिग्रेशन को लेकर जो डायग्राम्स है, ठीक है। तब उसके बाद है ऑन लैप, ऑफ लैप, इसके बारे में जो डायग्राम है ये सब आपको डालना है सेडिमेंटोलॉजी के इस पार्ट को ना, इस पार्ट में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी के लिए मैंने एडीजी का बुक कंसल्ट किया था। मुझे लगा था कि हर एक टॉपिक एडीजी में बहुत अच्छी तरह से कवर हुआ है। मैंने एडीजी से ही नोट्स प्रिपेयर किया था। अगर और कुछ पार्ट्स क्लार्कसन के बुक से मैंने कवर किया था, तो मुझे लगा था कि एडीजी इज इनफ, एडीजी इज सफिशिएंट फॉर पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में भी जो आपको पूछा, हर एक साल आपको पूछते हैं कि किसी एक का मॉर्फोलॉजी पूछते हैं कि अगर वो हो सकता है बाइवल्व और गैस्ट्रोपोड और सेफेलोपोड, जो 8 मॉर्फोलॉजी है, मतलब ट्राइलोबाइट्स, इकिनोइड्स, पोरास, ग्रैप्टोलाइट्स, एक को पूछते हैं और उसमें 15 मार्क्स रहते हैं। तो डायग्राम ड्रॉ करना है आपको, अच्छी तरह से पॉइंट करना है, ठीक है, नीट एंड क्लीन एक डायग्राम करना है, पॉइंट करना है। उसके बाद जो आपने पॉइंट किया है उसके बारे में वन वर्ड और 1 लाइन आपको लिखना है कि वो चीज क्या है। आप पॉइंट कर रहे हैं कि सपोज फॉर गैस्ट्रोपोड आपने स्पायर और बॉडी होल पॉइंट किया है, तो स्पायर की एक्सेप्ट द बॉडी होल, द ऑल द अदर holes are called as spire, and then the last hole that contains the soft body part, that is that known as बॉडी होल। इस तरह से आपको एक एक लाइन करके लिखना है, ठीक है। और माइक्रोपेल में भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, फोरामिनिफर, ऑस्ट्राकोड और जो अदर्स है, स्पोर पोलेंस, डायनोफ्लैजेलेट्स, उसके बारे में भी उसका भी मॉर्फोलॉजी पूछा गया है। तो ये सब है। और भारतीय में आई थिंक कुछ डायग्राम नहीं था। प्रोबोसिडा, इक्विडे और होमिनिडे में उसका जो इवोल्यूशनरी पैटर्न है, किसके बाद कौन सी आया है, क्या का इवोल्यूशन हुआ है, ऐसा ही पूछते हैं। और स्ट्रैटिग्राफी जो है प्रीकैम्बियन क्रेटन की, ये तो धारवाड़, बास्तार, सिंहभूम, अरावली, बुंदेलखंड और वो जो अदर्स मोबाइल बेल्ट है, और प्रोटोजोइक बेसिन्स, पुराना बेसिन्स एंड फेनोरोजोइक जो स्ट्रैटिग्राफी है, बेसिकली स्ट्रैटिग्राफी जो होते हैं कि एक के बाद एक, फेनोरोजोइक के टाइम मतलब पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक में किसके बाद कौन सी स्ट्रैटिग्राफी आते हैं, कि कॉन्ग्लोमरेट के बाद, लाइक इन केस ऑफ स्पीति की डेवोनियन में मूथ क्वार्जाइट है। ये सब जो चीज है, मतलब द हार्डकोर स्ट्रैटिग्राफी पार्ट, ये मैंने किसी बुक से कभी नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये कॉलेज में ही कवर हो गया था। आई थिंक आप सबको भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि स्ट्रैटिग्राफी सबको ही पता है। स्ट्रैटिग्राफी से ना कुछ अलग अलग से क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन कि सदर्न ग्रेनुलाइट टेरेन, उसके साथ पैन अफ्रीकन ओरोजिनी का क्या लिंक, रिलेशन है। आई थिंक सॉरी, पैन अफ्रीकन, आई थिंक कुछ एक ओरिजिनी का, हाँ, रिलेशन है। ऐसी तरह एक क्वेश्चन आती है, 2-3 टाइम्स आए हैं। तो इस तरह की कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिग्राफी में स्पेसिफिकली। पिछले बार भी आया था कि सकौली ग्रुप की कोई टेक्टोनिक इवोल्यूशन ऐसी तरह कुछ आया था। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए यू कैन कंसल्ट वाल्दिया, ओके, द बुक ऑफ वाल्दिया। वहां पर बहुत अच्छी तरह से स्टैटिग्राफी के साथ जो जियोडायनामिक एक्टिविटी और टेक्टोनिक एक्टिविटी हुआ है द एंटायर इंडियन क्रेटन, वो बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया गया है। तो यू कैन कंसल्ट दैट बुक, ओके।
फॉर पेपर 2 मिनरलॉजी के लिए जो क्रिस्टलोग्राफी एंड मिनरलॉजी के पार्ट है, मैंने सिर्फ एक ही बुक पढ़ा था ऐसे, मैंने किसी और बुक नहीं पढ़ा था, नहीं कंसल्ट किया था, सिर्फ ने से ही पढ़ा था। और यहाँ पर भी आपको ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना कि ओलिविन, गार्नेट, एल्यूमिनोसिलिकेट्स, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि इसका फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, तो वो ना आपको पॉइंट करके लिखना है कि ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब हैंड स्पेसिमेन में आप क्या क्या देखते हैं, कि कलर देखते हैं, उसके बाद आप क्लीवेज देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी तो एग्जैक्टली आपको पता नहीं होता तो होगा एग्जाम के टाइम में कि कौन किसका 2.5 है कि किसका 5.7 है, ये आपको नहीं पता होगा, बट relatively which one have high specific gravity and which one have low specific gravity, ये तो आपको पता है, तो specific gravity point करके आप high low ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में भी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कलर, रिलीफ एंड इन क्लीवेज, ये सब आपको देखने को मिलेगा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में अंडर पीपीएल। क्रॉस पोलर में भी आपको जो अनाइसोट्रोपी ये सब देखते हैं, ये आपको आप पॉइंट करके लिख सकते हैं, कि पॉइंट करके अगर आप लिखेगा तो मतलब जो प्रेजेंटेशन है आंसर के वो बहुत अच्छा होगा। तो आप ये लास्ट जो पार्ट है इससे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बुलेट मार्क्स करके वो सब आंसर कर सकते हैं। मैंने इस मिनरलॉजी के लिए सिर्फ नेसे बुक की पढ़ा था, और जियोकेमिस्ट्री और आइसोटोप जियोलॉजी के लिए मैंने व्हाइट, आरएम व्हाइट के आरएम या क्या मुझे अभी पता नहीं है, बट व्हाइट, आई थिंक व्हाइट के एक बुक थे, और विंटर, जेडी विंटर के चैप्टर 7, 8 और 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पार्ट्स। ये जो गोल्डस्मिथ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, नॉन पार्टीशन कोएफिशिएंट, नॉन स्पार्थल और पार्टीशन कोएफिशिएंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन रीड फ्रॉम chapter 7, 8 and 9 from John D. Winter. Okay, and these are also there. Half-life, decay equation, potassium, argon, rubidium, strontium, uranium, lead, samarium, neodymium systematics. They are also in the John D. Winter chapter, I think chapter 9 or chapter 8. Okay. Then for igneous petrology के लिए मैंने विंटर और मिहिर के बोस ये दोनों बुक कंसल्ट किया था। यहाँ पर भी आपको ये जो छोटे छोटे चीजें कि डिफरेंशिएशन, एसिमिलेशन, मिक्सिंग, मिंगलिंग, ये जो छोटे छोटे चीज है ना, ये छोटे छोटे चीज को लेकर एक 5 मार्क्स की शॉर्ट नोट्स आ सकती है। तो आपको हर एक चीज को लेकर छोटे छोटे नोट्स बनाना है, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि उस वक्त एग्जाम के टाइम में आपको थोड़ा सोचने की टाइम तो नहीं है ना, आपको लिखना है विद इन 3 आवर्स यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर पेपर, तो आपको थोड़ा टाइम बचेगा अगर आपने नोट्स प्रिपेयर किया है। ये होगा मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के लिए मैंने विंटर एंड फिलपॉट्स ये 2 बुक्स कंसल्ट किया था। यहाँ पर भी आप नोट्स प्रिपेयर आपको करना चाहिए, नोट्स पेपर और प्रिपेयर, और जहां पर डायग्राम जरूरी है आपको जरूर डायग्राम डालना है। कि अगर आपको लगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी है कि आपको लगेगा कि ठीक है यहाँ पर तो सिर्फ लिखना ही है, अगर आपको लगेगा कि ठीक है यहाँ पर अगर मैंने ये डायग्राम डालूंगी तो इट विल वो आपका जो वो आंसर और भी अच्छा होगा, तो डेफिनेटली यू शुड पुट दैट डायग्राम से ना आपको थोड़ा ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम से यू कैन जो आपको आपका पेपर चेक कर रहे हैं ना उसके लिए बहुत इजी हो जाते हैं, डायग्राम से उसको समझना बहुत इजी होता है, ठीक है। क्वेश्चन उसके लिए समझना बहुत इजी होता है क्वेश्चन, तो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम जहां पर आपको लगेगा ठीक है यहाँ पर डायग्राम डालना है, डायग्राम करना है, तो आपको डायग्राम जरूर डालना है। फॉर जियोडायनामिक्स मैंने लाउरी की बुक कंसिडर किया है, विलियम लाउरी। देयर आर most of the topics are covered in the book. I think almost all the topics are covered in that book.
तो जियोडायनामिक्स के लिए मैंने लाउरी का बुक क्या पढ़ा था। और फॉर पेपर 3 इकोनॉमिक जियोलॉजी के लिए मैंने मेनली लॉरेंस रॉ, कुलाशी मिश्रा एंड थर्ड वन इज आई थिंक रिडली, RERIDLEY, रिडली। फर्स्ट नेम मुझे याद नहीं है, रिडली। ये 3 बुक्स मैंने कंसल्ट किया था। और यहाँ पर भी जिस टाइप को, जिस क्वेश्चन पे आपको लगेगा कि यहाँ पर डायग्राम डालना, यहाँ पर अगर मैंने कुछ ग्राफ ड्रॉ किया तो इट विल इजियर टू मेक देम अंडरस्टैंड, टू मेक द एग्जामिनर अंडरस्टैंड, देन डेफिनेटली आपको डायग्राम डालना है यहाँ पर। और इंडियन मिनरल डिपॉजिट्स एंड मिनरल इकोनॉमिक्स, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट, ये मैंने उमेश्वर प्रसाद से पढ़ा था। और सेकेंड पार्ट, ये जो मिनरल लॉज है, मिनरल कंसेशन रूल्स है, ये मैंने गूगल किया था। तो देयर आर सेवरल लिंक्स, नेशनल मिनरल पॉलिसी का भी मुझे PDF था। और मैंने इंटरनेट से ये सब टॉपिक पढ़ा था। इसके लिए कोई बुक से मैं ये टॉपिक ढूंढ नहीं पाया, मैं बहुत ढूंढा था, बट ये सब टॉपिक्स कोई बुक्स में मुझे नहीं मिला था। अगर आपको मिलेगा तो डेफिनेटली इट विल वेरी गुड, बट मुझे नहीं मिला था, तो इसीलिए मैंने गूगल किया था। मैंने ऑनलाइन से ही ये सब टॉपिक ढूंढा था और उसके बाद पढ़ा था। और मिनरल एक्सप्लोरेशन का जो टॉपिक है, ये सब टॉपिक इसके हलदार में बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। तो मैंने इसके हलदार का बुक पढ़ा था। और फ्यूल जियोलॉजी के पार्ट में जो कोल का पार्ट है, वो वार्ड की बुक से मैंने पढ़ा था। और पेट्रोलियम का जो पार्ट है, वो मैंने शेली, आई थिंक द ऑथर नेम इज शेली, जस्ट लेट मी चेक। Yes, the name is Shelly. Uh, शेली का बुक मैंने कंसिडर किया था। और थर्ड पार्ट जो है, एनवायरमेंटल जियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ये एनवायरमेंटल जियोलॉजी और इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ये इसका जो टॉपिक है, एनवायरमेंटल जियोलॉजी का मोस्ट ऑफ द टॉपिक, आई थिंक देयर आर सम टॉपिक्स जो आपको प्रीलिम्स के दौरान कवर हुआ है, कि ये जो ओशन एसिडिफिकेशन, कोरल ब्लीचिंग, एस्चुअरीज, मैनग्रोव्स, आई थिंक आप सबने इकोलॉजी के पार्ट में ये सब कुछ पढ़ा था प्रीलिम्स के दौरान, प्रीलिम्स के लिए। तो ये सब वहां से मुझे मिला था। और ये जो मिलानकोविक साइकिल, ये तो हम सबको जियोलॉजी के लोग पता ही है। यूट्रोफिकेशन, एसिड रेन, ये सब भी मैं आई थिंक आप सबने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था। प्रीलिम्स के इकोलॉजी पार्ट में ये सब था। तो ये सब हमने वहां से ही कवर किया था। और ये जो ग्लेशियर्स और अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस, सुनामीज, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, कोस्टल इरोशन, ये तो टिपिकल एनवायरमेंटल जियोलॉजी के पार्ट है। तो इसके लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर में ये सब चीज मुझे बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को पढ़ाया गया था। तो इसीलिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा था, सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो पढ़ा था, मैं वही पढ़ा था। और रिमोट सेंसिंग, ये जो लास्ट टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये आपको RP गुप्ता के बुक में बहुत अच्छी तरह से कवर किया है। तो यहाँ से ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि अलग अलग जो इवेंट होते हैं उसके बारे में पूछता है कि फ्लड, अगर फ्लड हुआ तो कैसी तरह की रिमोट सेंसिंग होगा, फायर, वाइल्ड फायर होगा तो कैसी तरह की रिमोट सेंसिंग होगा। इसी तरह से अलग अलग करके ना पूछता है। ड्रॉट्स के लिए क्या GIS यूज करते हैं। ऐसी तरह से 10 मार्क्स के लिए अलग अलग इवेंट को लेकर अलग अलग रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस जो होते हैं, वो आपको पूछते हैं। तो इसी तरह से ये सभी मैंने ये सभी किया था। और या दैट्स ऑल। सो नाउ यू कैन टेल मी, अगर आपको कोई क्वेरीज है कि इस टॉपिक को कुछ
पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, कुछ पर्टिकुलर बुक्स को लेकर, तो यू कैन आस्क मी। मैम इंजीनियरिंग जियोलॉजी। ओके, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, ओके ओके, ठीक। इंजीनियरिंग जियोलॉजी का भी एक बुक है, मुझे अभी याद नहीं है। तो एक बुक मैंने पढ़ा था, ये डैम और रिजर्वर टनल्स यहाँ पर था। ठीक है, मैं ना एक बार देखती हूँ अगर वो बुक मेरे पास है या नहीं। नहीं, अभी नहीं है मेरे पास। ठीक है, मैं आपको देखकर बताती हूँ। अभी मेरे पास वो बुक नहीं है। एक बुक था, मुझे ऑथर का नाम भी अभी याद नहीं है, क्या था। ओके ओके, नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू कि कौन सी बुक मैंने पढ़ा था, ठीक है। मैम इकोनॉमिक जियोलॉजी थोड़ा रिपीट कर देना, नेट कनेक्शन। अच्छा, इकोनॉमिक जियोलॉजी के लिए मैंने लॉरेंस रॉब, कुलाशी मिश्रा एंड रिडली, RIDLEY, रिडली, मुझे फास्ट नेम याद नहीं है, रिडली, ये 3 बुक्स मैंने कंसल्ट किया था। यहाँ से आपको सब टॉपिक मिल जाएगा, हर एक टॉपिक वहां से ही कवर हुआ है। ओके। अच्छा, मुझे याद आया, लास्ट दिन किसी ने मुझे पूछा था कि स्ट्रेटा बाउंड डिपॉजिट की एक एग्जांपल। तो स्ट्रेटा बाउंड डिपॉजिट का जो एग्जांपल है, वो जो सकौली एरिया है ना, विद इन द बास्तर केटन, तो सकौली एरिया में स्ट्रेटा बाउंड लेड जिंक डिपॉजिट है। तो सेडेक्स टाइप लेड जिंक डिपॉजिट है स्ट्रेटा बाउंड, वो स्ट्रेटा बाउंड डिपॉजिट का एग्जांपल है। यू कैन राइट डाउन। एंड और एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि रोडोक्रोसाइड के लिए हम लोग CCD, मतलब कार्बन कंपेंसेशन टेप कंसिडर, इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ CCD? तो आई सेड कि मुझे नहीं लगता है कि इज देयर एनी इफेक्ट। मैंने बहुत सर्च भी किया, मैंने बुक से भी देखा, बट देर इज नो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट CCD कि अगर CCD के ऊपर जाएगा तो स्टेबल होगा, CCD के नीचे आएगा तो डिसॉल्व कर जाएगा, जो कैल्साइट के बारे में होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो आई थिंक देर इज नो रिलेशन अबाउट CCD फॉर रोडोक्रोसाइड। मुझे याद नहीं है किसने पूछा था, अगर वो मौजूद है यहाँ पर तो आई थिंक उसको आंसर मिल गया है। तो ठीक है, और कुछ डाउट टॉपिक्स को लेकर, सिलेबस को लेकर और बुक्स को लेकर? एक्सक्यूज मी यस। मैम, थर्ड पेपर में सेक्शन ए जो है इकोनॉमिक जियोलॉजी, इसमें माइक्रो थर्मोमेट्री एंड स्टेबल आइसोटोप, ये कहाँ से पढ़ना है? हाँ, कौन सा? पेपर 2? पेपर 3 सेक्शन ए। ओके। हाँ, यहाँ पर ये जो माइक स्टेबल आइसोटोप्स इन एंड ओरजेनेसिस माइक्रो या थर्मोमेट्री। जियोथर्म, हाँ, ये ना कुलाशी मिश्र में है। कुलाशी मिश्र का जो बुक है उसमें आई थिंक अलग चैप्टर है, चैप्टर 7 और 8, मुझे याद नहीं है चैप्टर। लेट मी चेक। हाँ, चैप्टर 3 में आपको फ्लूइड इंक्लूशन, ट्रेस एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको मिल जाएगा, वो जो माइक्रो थर्मोमेट्री है ये सब। और चैप्टर 4 में अलग अलग करके वो 4 आइसोटोप्स है, सल्फर आइसोटोप्स, कार्बन आइसोटोप्स, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आइसोटोप्स, जियोथर्मोमेट्री, ये सब है। आपको कुलाशी मिश्र का जो बुक है उसमें मिलेगा। ओके। थैंक यू। ओके।
ओके, तो और कोई डाउट है? हाँ, एनवायरमेंटल जियोलॉजी के लिए मैंने जो बोला था कि इसका जो टॉपिक्स है, आई थिंक ये पहला वाला टॉपिक ये हम सबको पता था, और ये जो लास्ट टॉपिक था कि जियोकेमिकल साइकिल ऑफ कार्बन और लेगून्स, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल साइट्स, ये सब ना मैंने प्रीलिम्स के लिए जब पढ़ा था, तो जो मतलब मुझे ना प्रीलिम्स के लिए ये सब नोट्स था। आई थिंक यू ऑल हैव रेड अबाउट दिस टॉपिक की यूट्रोफिकेशन, एसिड रेन, इसका एक पीडीएफ था मेरे पास, तो उसमें ये सब चीज था, तो इसीलिए मैंने कोई अलग सी बुक कंसल्ट नहीं किया था। तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी बुक में ये सब चीज है। इकोलॉजी का एक बुक है, आई थिंक उसमें ये सब चीज है। फिर भी मैं प्रीलिम्स के लिए ये सब टॉपिक्स कवर किया था। ये सब टॉपिक्स प्रीलिम्स के लिए, ओजोन होल डिप्लीशन, ये सब प्रीलिम्स के लिए कवर हुआ था, तो इसीलिए मैंने बुक्स नहीं पढ़ा था, तो मुझे नहीं पता है कौन सी बुक्स में ये सारे चीज एक साथ आपको मिलेगी। फिर भी मैं देखकर बताऊंगी कि अगर कोई बुक है ऐसा कि इसमें ये सारे टॉपिक्स है, तो मैं आपको बताऊंगी। मैंने कोई बुक कंसल्ट नहीं किया, क्योंकि ये सारा टॉपिक्स मैंने प्रीलिम्स के लिए पहले ही पढ़ा था, तो इसीलिए मैंने कोई अलग बुक्स नहीं पढ़ा था, वहां से ही शॉर्ट शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया था, और वहां से ही क्वेश्चन आया था। ओजोन होल डिप्लीशन के बारे में आया था, न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल साइट्स के बारे में आया था, कोरल ब्लीचिंग के बारे में आया था, तो मैंने आंसर कर दिया था। बट सो इसीलिए मुझे नहीं पता है कौन सी बुक में ये सारा चीज एक साथ में है। फिर भी मैं आपको देखकर बताऊंगी। ये दो टॉपिक हुआ, इंजीनियरिंग जियोलॉजी का एक बुक जो मुझे अभी याद नहीं है कि क्या नाम था, मैं ढूंढ भी नहीं पा रही हूँ, और एनवायरमेंटल जियोलॉजी। तो ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी ये दो टॉपिक की जो बुक है, कि कौन सी बुक में मिलेगा। मुझे भी ढूंढना पड़ेगा एनवायरमेंटल जियोलॉजी के लिए, क्योंकि मैंने कोई बुक से नहीं पढ़ा था। तो ओके, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? Okay, how many pages you should write according? Okay, for short notes, 5 marks. For short notes, there is 5 marks, so you will only get 1 page. Okay, so within 1 page, at first you have to write. Suppose consider कि आपको लाइक लास्ट ईयर पेपर 2 में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्यूमुलेट टेक्सचर। ओके, सो आपको सॉरी पहले आपको लिखना है कि व्हाट इज क्यूमुलेट टेक्सचर, जस्ट 1 लाइन। देन यू कैन write down the different type of cumulate texture ki orthocumulate, adcumulate, heterocumulate, how they forms, and then you can draw the diagram. Okay, so एक पेज में आपको हो जाएगा। एक पेज में ऐसी तरह से आपको 5 मार्क्स के लिए एक पेज मिलेगा, और 10 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको 2 पेजेस मिलेगा, और जो और 15 मार्क्स के लिए आपको 3 पेजेस मिलेगा। 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको 3 पेजेस मिलेगा, और 10 मार्क्स के लिए 2 पेजेस, और 5 मार्क्स के लिए 1 पेजेस। मतलब each 5 marks contains 1 page. And we need to refer each and every because it's great. Okay, great. I think पिछले पिछले साल की जो क्वेश्चन है उसके ईच एंड एवरी डिपॉजिट का ग्रेड नहीं पूछा गया है, बट यू शुड नो अबाउट लिथोलॉजी। मतलब होस्ट रॉक क्या है, लिथोलॉजी क्या है, उसका पोजीशन कौन सी जगह में।
regarding this matter. Okay, so for the I think Indian deposit, हाँ Indian deposit के बारे में मैंने जो बोला था कि उमेश्वर प्रसाद से ही हमने कवर किया था, वहाँ पर ना हर एक डिपॉजिट को लेकर अलग अलग एक चैप्टर है कि गोल्ड कौन सी जगह पर इंडिया में मिलते हैं, उसका जो होस्ट रॉक वहाँ से जो मिलते हैं वो सब अलग अलग करके एक टेबल बनाकर वहाँ पर है। तो इसलिए मैंने उमेश्वर प्रसाद से ही ये सब कवर किया था। और अब होस्ट रॉक के बारे में आपको जानना है, ग्रेड पिछले कई साल में नहीं आया है, तो मैंने ग्रेड के बारे में मुझे ये भी नहीं पता है कि नेक्स्ट ईयर में आएगा या नहीं, पर मैंने ग्रेड नहीं पढ़ा था क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो किया था, तो ग्रेड नहीं आया था। आई थिंक ग्रेड नहीं आया था, मेरी नजर में कभी नहीं आई, तो इसीलिए मैंने ग्रेड नहीं पढ़ा था। बट लिथोलॉजी आपको जानना है कि लिथोलॉजी होस्ट रॉक कहाँ पर है, और अगर आप जानते हो कि कहाँ पर है तो आपको जरूर ना इंडिया की एक रफ मैप ड्रॉ करके आपको उसका पोजीशन ड्रॉ करना है, तो उसके दौरान आपको कुछ नंबर तो जरूर ज्यादा मिलेगा। तो अगर आपको पूछा है कि शायद सिंघुम शेयर जोन से कुछ डिपॉजिट के बारे में पूछा गया है, तो अगर आपने इंडिया के कहाँ पर सिंघुम शेयर जोन का जो लोकेशन है कि यहाँ पर सिंघुम शेयर जोन है और यहाँ से हमें यूरेनियम मिलते हैं, कि यहाँ पर यूरेनियम का जो डिपॉजिट्स है सिंघुम शेयर जोन पे जादूगोड़ा तुराम्बी, वहां पर अगर आपने इंडिया के मैप में पॉइंट किया है कि यहाँ से मिलते हैं, तो ये अच्छा होगा। तो यू कैन ड्रॉ द position of that particular deposit within the Indian map। लिथोलॉजी के बारे में आपको जानना है, और उमेश्वर प्रसाद से हमने पढ़ा था। उमेश्वर प्रसाद में आई थिंक ईच एंड एवरी डिपॉजिट के बारे में बहुत डिटेल्स में लिखा हुआ है, तो उस बुक से आपको मिलेगा। और मिनरल लॉज के बारे में मैंने जो बोला था कि वो तो मैंने इंटरनेट से ही ढूंढा था, बुक में मुझे नहीं मिला था। अगर आपको मिलेगा तो बहुत अच्छा है, पर मुझे कोई बुक्स या कोई रेफरेंस मुझे नहीं मिला था, तो इसीलिए मैंने गूगल करके इंटरनेट से ही ढूंढा था कि मिनरल लॉज कंसेशन रूल्स क्या है, तो ये मुझे वहां से मिला। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चंस है? और कोई डाउट है? ठीक है, आई थिंक और कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग क्या ये बता सकते हैं कि इन द नेक्स्ट डे, मैंने जब लास्ट डे किया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था कैसी तरह से आंसर्स लिखना है, तो इन द नेक्स्ट डे मुझे वही कंटिन्यू करना है कि कुछ और करना है? और कौन सी टॉपिक कि पेपर 1 पेपर 2 या पेपर 3 में कौन सी टॉपिक आपको पहले चाहिए कि पहले ये हो जाएगा तो कुछ स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, तो ये क्या आप बोल सकते हैं कि क्या नेक्स्ट डे में क्या करना है? ओके, पेपर 3। ओके, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट डे, ओके, इकोनॉमिक जियोलॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मैंने आई थिंक लास्ट डे मैंने 2022 का इकोनॉमिक जियोलॉजी पार्ट डिस्कस किया था, तो ठीक है। मैं नेक्स्ट डे मैंने 2021 में तो इकोनॉमिक जियोलॉजी का कोई पार्ट नहीं था, थर्ड पेपर नहीं हुआ था, तो 2020 का जो इकोनॉमिक जियोलॉजी पार्ट है, बेसिकली इकोनॉमिक जियोलॉजी मतलब टॉपिक 1 एंड टॉपिक 2 ऑफ थर्ड पेपर। तो थर्ड पेपर की टॉपिक 2 भी इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंडर ही है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया। तो आई विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट दोस 2 टॉपिक्स फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ 2022 इन द नेक्स्ट डे। ओके, ठीक है। तो आज के लिए दिस इज ऑल। और कोई डाउट है कि कोई सिलेबस को लेकर, बुक्स को लेकर? अगर नहीं है तो
मॉडल क्वेश्चन सेट मतलब क्या आप ये बोलते हैं कि मैं क्वेश्चन आपको बनाकर भेजू, ये बोल रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया कि मॉडल क्वेश्चन सेट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके पास है, मॉडल क्वेश्चन सेट मतलब आप क्या मुझे पूछ रहे हैं कि मैं क्वेश्चन बनाकर आपको भेजू, ये क्या? ओके ओके, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन से, सब्जेक्ट वाइज मतलब कि इकोनॉमिक जियोलॉजी के जो क्वेश्चन है, ये इसका जो क्वेश्चन है ये तो प्रीवियस ईयर्स ही मैं तो प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन सबको बताऊंगी। लास्ट दिन 22 का बताया था और नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस अबाउट 2020। तो आप सब्जेक्ट वाइज जो मॉडल से पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन आप क्या पूछ रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो सब्जेक्ट वाइज मतलब इकोनॉमिक जियोलॉजी के ही जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर से वही डिस्कस करूंगी। सब्जेक्ट वाइज और क्या क्वेश्चंस, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यू कैन टर्न ऑन योर माइक। हेलो, आई थिंक मणिमाला, या मणिमाला, यू कैन टर्न ऑन योर माइक। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि मैं तो सब्जेक्ट वाइज इकोनॉमिक जियोलॉजी का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से वही डिस्कस करूंगी, और सब्जेक्ट वाइज और क्या क्वेश्चन आपको चाहिए, ये अगर आप कहेंगे तो अच्छा होगा। हेलो। हेलो। यस। हेलो मैम, एक्चुअली सारा ने बोला था कि जो जो टॉपिक को पढ़ाया जाएगा उसको रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सेट 100 और समथिंग ऐसा कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन भी देने वाला है, तो वो कब देगा, तो वही पूछना था। ओके ओके ओके, तो इसका मतलब है कि मैं अगर इकोनॉमिक जियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रही हूँ तो इकोनॉमिक जियोलॉजी के जो क्वेश्चंस होता है वो मुझे आपको देना है, यही है ना? हाँ, सर ने तो बोला था वही। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देन आई विल ट्राई टू अरेंज सम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से, जैसे जैसे आया है उसके रेफरेंस से आई विल ट्राई टू अरेंज सम क्वेश्चंस। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, विद इन नेक्स्ट 2-3 वीक्स आई विल सेंड दैट क्वेश्चन। ओके ओके। और कोई डाउट है? ठीक है, तो अगर किसी का कोई डाउट और नहीं है regarding the syllabus and the books and how to write the questions, Ma'am, किस तरह, yeah, hello, ma'am. Ma'am, actually, I have a yes, doubt that is, ma'am, here in this Q&A session, we are only covering the questions of the previous years. Ma'am, there is a okay. query that if, ma'am, any other topic related to this, I mean, syllabus only, if any questions are left out, I mean, which have not came in the previous years, or the questions which are still can come in the upcoming exam. So, ma'am, how can we face that type of questions? I mean, the topic wise coverage will be there. ओके, सो मैंने तो इकोनॉमिक जियोलॉजी, मैंने तो स्टार्ट किया था इकोनॉमिक जियोलॉजी से, तो अगर आपको लगेगा कि ये टॉपिक प्रीवियस ईयर्स में नहीं आया था इकोनॉमिक जियोलॉजी के पार्ट में,
बट आ सकता है इन द नेक्स्ट ईयर, आ सकता है कि ये टॉपिक, तो अगर आपको लगेगा तो आप ना नोट डाउन करके रखिए कि ये टॉपिक प्रीवियस ईयर्स में नहीं आया है, और आपको लगता है कि ये बेसिकली आपको डिस्कस करना है कि कैसे तरह से ये द एंटायर थिंग डिस्कस करना है, तो आप मुझे, आप सब ने, जो जो यहाँ पर प्रेजेंट है, आप सबको ही मैं कह रही हूँ कि जो जो टॉपिक आपको लगेगा कि ये टॉपिक प्रीवियस ईयर्स में नहीं है, कि प्रीवियस ईयर्स में आया भी है, बट यू थिंक दैट यू नीड मोर क्लैरिफिकेशन, मोर डिटेलिंग, then you can send me those topic, then I will try to arrange a class for those topics, कि मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी कि ठीक है, कि अगर वो नहीं आया है, कि आपको कोई डाउट है, तो मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगी, और वहां से कैसी तरह की क्वेश्चन आ सकती है वो आई विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, तो आप क्या करें कि आप पहले वो नोट डाउन करें कि ये टॉपिक कवर करना है, ये टॉपिक अगर एक बार पढ़ाएंगे तो अच्छा होगा, तो आप मुझे उस टॉपिक वो टॉपिक ना भेज देंगे। ठीक है, आपको यू कैन मैसेज मी, तो मैं ट्राई करूंगी एक क्लास अरेंज करने की जहां पर मैं उस टॉपिक को डिस्कस कर सकूं। ठीक है, कि क्वेश्चन के बावजूद भी, क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है वो तो होगा, ठीक ठीक है, डिस्कस होगा, बट अगर आपको लगेगा कि ये टॉपिक डिस्कस करना है, कि ये टॉपिक कवर नहीं हो रहा है, ये टॉपिक मुझे अच्छी तरह से ये पार्ट मुझे नहीं पता है, तो यू कैन सेंड मी, यू कैन सेंड दैट टॉपिक मी, आई विल ट्राई टू अरेंज अ क्लास। ओके Okay, sure, ma'am. ओके ओके। तो और कोई डाउट है? पेपर 3 को लेकर आपको जो डाउट है ना, कि क्योंकि मेरे लिए भी पेपर 3 बहुत टफ था, क्योंकि मुझे लगता कि उस टॉपिक, जो सारे टॉपिक्स है यूनिवर्सिटी में हमें बहुत अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया गया था। पेपर 1 और पेपर 2 कवर हो रहा था बहुत अच्छी तरह से, बट पेपर 3 मेरे लिए बहुत हार्ड था। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर पेपर 3 की जो जो टॉपिक, नॉट ओनली इकोनॉमिक जियोलॉजी, अदर्स जो 4 टॉपिक है, उससे भी आपको जो जो टॉपिक लगेगा कि ये टॉपिक हमें एक बार पढ़ाया दिया गया तो अच्छा होगा, तो आप मुझे बोल सकते हो। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू अरेंज अ क्लास ऑन दैट टॉपिक। तो आप मुझे कह सकते हो कि ठीक है, ये पार्ट, अगर आपने ये पार्ट मैम एक क्लास कराएंगे तो अच्छा होगा। तो द एंटायर पेपर 3 को लेकर जो जो टॉपिक में आपको डाउट है कि ये टॉपिक करना है, तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं क्लास लेने की कोशिश करूंगी। ठीक है, ओके। किसने कहा है? नेहा आई थिंक कहा है फ्लूइड इंक्लूशन। ठीक है, और कोई टॉपिक? फ्लूइड इंक्लूशन, और कोई टॉपिक कवर करना है? हेलो, आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो आई प्रिपेयर ऑल्सो फॉर माई सेल्फ। ओके, फ्लूइड इंक्लूशन, नेहा ने कहा कि फ्लूइड इंक्लूशन, ठीक है, मैं फ्लूइड इंक्लूशन को लेकर एक क्लास ले लूंगी। और कोई टॉपिक?
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर बाद में भी आपको याद आया कि ये टॉपिक अगर डिस्कस होगा तो अच्छा होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो in the next class, I will discuss about 2020, from 2020 का इकोनॉमिक जियोलॉजी का पार्ट जो है वो डिस्कस करूंगी। और उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास आई विल कंडक्ट द क्लास अबाउट फ्लूइड इंक्लूजन। ओके ओके नेहा, ठीक है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास मैं फ्लूइड इंक्लूजन के ऊपर एक क्लास ले लूंगी। और ड्यूरिंग दिस टाइम अगर आपको याद आएगा कि ठीक है ये अगर ये टॉपिक डिस्कस होगा तो अच्छा होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू कंडक्ट। ठीक है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव।